ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಸ್ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ನಾನು ಇಲಿಯಾಸ್ ಬೇಗ್ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ 7ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯೋದು ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಾವು ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಳಿದ್ದು ಕುಸ್ತಿ ಮಡಗಿದ್ದೀವಿ 7ನೇ ತಾರೀಕು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 10-10:30 ತನಕ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಮು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಮೊದಲೇ ನಾವು ಬಾರಿಗೇಡ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದು ಗ್ರೌಂಡು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಮಾಲ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗ ಬರೀ ಗಾಂಜಾ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತಾವ್ರೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 25-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 5,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನನೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಡೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ತಕರಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಯಿತು, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಪೈಲ್ವಾನ್ರು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಈ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು 25-30 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕುಸ್ತಿ. अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुजाहिद मुज्जू मेरा नाम है। मिलाद स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी। ये 25 साल से हमारे रजिस्टर कमेटी, पूरे कमेटी के साथ हमें किसके पास भी चंदा नहीं लेते, हमें कमेटी वाले करती हैं। करे तो भी एक कलीमुल्ला साहब एक चुप के बैठा को जमा लगो, एक कमीशन कर को पुलिस कमिश्नर को एक लेटर देखो, चुप के क्या की बोलती है तो पहलवाना कि कुश्ती नहीं होना, क्रिकेट होना, ये होना, वो होना, ये सब गलत बात है। 25-30 साल से भी कर ले कहीं उन्होंने एक ही जगह ना सतारी, तो दूसरे कौन भी सतारी नहीं। हमना कमिश्नर हो, MLA साहब हो, MLA साहब से सजादार से काम करती MLA साहब। नहीं, बयान देने में सिर्फ वो अकेले नहीं थे, बल्कि यहाँ के आसपास के उन्होंने जमई से आसपास संघा के क्या की लीडर के थे। ये मेहरबानी से स्पोर्ट्स के बारे में बताइए सर, क्या करने वाले हैं? हर साल तो कमेटी हमारी करती है, परमिशन के साथ लेती है कमेटी। ये परमिशन लेटर है हुकूमत कर्नाटक की तरफ से पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर के साथ MLA के हमारे पर साथ देती तो मेहरबानी से अच्छे से अच्छा कर। कौन सा इससे पूरा ये कारपोरेशन से मिलते हैं एक ही जगह मोड़ा सब एक ही जगह इंशाल्लाह। अच्छा, वक्त बता दीजिए सर, अब जो तयशुदा प्रोग्राम है कुश्ती का 3 बजे से 10 बजे तक है। 7 तारीख से 8 तारीख 7 तारीख को दोपहर 3 बजे शुरू होता है। कल 8 बजे कब तक होता है? 10 बजे तक शाम के। इनामत सभी उसी वक्त दे देते हैं। इधर कैश प्राइज भी देती, इधर टोटल मीराज बाग में देती। पहलवाना को 25,000, 15,000, 10,000 कहता भी है, वो कैश पे अच्छा, ये शरीक होने वाले कुश्ती में पहलवान मैसूर से अलावा कहाँ से बाहर से, दावणಗೆರೆ से, बेंगलुरु से, कोल्हापुर सबसे आती। ಸರ್, ನಾವು ಈ ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ. 68 ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕಲೆ ಇದು. ಈ ಕಲೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಹುಡುಗರಿಗೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 20-30 ಜನ. ಇವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವುದು ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಳಗಾಮು, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕರೆಸ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಸತಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾವುದೂ ಒಂಥರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ನಾವು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷ ಒಂದು ತಡೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕಲೆ ಇದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇವಾಗ 55 ವರ್ಷ 58 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೀತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಅದರ ಪೈಗಂಬರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಬಂದಿರೋ ಕಲೆ ಇದು.
ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಮನೆತನದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಳೆ ಕಲೆ. ಇದು ಈ ಹಳೆ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ ತಾವು ಒಬ್ರು ಕುಸ್ತಿ ಪಟುನ? ನಾನು ಪೈಲನ್ ಚೋಟ ರಫೀಕ್ ಅಂತ, ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹುಡುಗರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹುಡುಗರು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ತಮ್ಮದು ಗರಡಿ ಇದೆಯಾ? ನಮ್ಮದು ಮೈಸೂರು ಈಶ್ವರಾಯರ 10 ಜನಗಳ ಗರಡಿ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ. ನಾನು 86ರಲ್ಲಿ 87ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿ ಮೂಲಕ ಬಂದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಪಂಡುನು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೇ, ನಮ್ಮತವನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿರೋಂಥ ಹುಡುಗ ನಾನು. ನಮಗೇನೋ ಒಂಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರ್ದೂ. ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಲು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ, ಹುಡುಗರು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ಆದಾಯ ಆದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ದಾರಿ ಕೊಡಿ. ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. वालेकुम अस्सलाम। पंडित जहाँ वहाँ पे खड़े हैं निमरार ग्राउंड में, वहाँ पे कल हमने एक यहाँ के लोगों से मुलाकात की थी और वो लोग हमें फ़ोन पे बताए थे कि बहुत शिकायत है। हमने यहाँ पे आकर न्यूज़ भी कवर की थी। उन लोगों का ये कहना है कि वो स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ नहीं है, बिल्कुल मेरा स्पोर्ट्स से जो भी स्पोर्ट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ़ नहीं, बल्कि उनका ये कहना है कि कुश्ती जो ड्रेस कोड होता है, यानी पहलवान लोग जो यानी अपना जो ड्रेस कोड रखते हैं ना, वो यहाँ के ख़वातीन को मसला हो रहा है। इसमें आप आज यहाँ पे मट्टी वगैरह डाल रहे हैं, मतलब आपके तयशुदा प्रोग्राम के तहत आप कुश्ती चला रही हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कम सरस एक 25-30 साल से ये कमेटी बाकायदा पूरा मिलाद स्पोर्ट्स का, पूरा जितने भी मिलाद स्पोर्ट्स हैं पूरा 25-30 साल से ये कराया जा रहा है। इंशाल्लाह इसके अंदर जो हमारे MLA साहब तनवीर सेठ साहब हैं उन्होंने परमिशन दिए गए हैं, और जो वहाँ के MLA नागेंद्रा हैं उन्होंने परमिशन दी गई है, और जो मूड़ा जो यहाँ से उन्होंने परमिशन दी गई है, और पुलिस कमिश्नर ने भी यहाँ पर परमिशन दी गई है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ जो हमने कराया जाता है बस इसलिए कराया जाता है ताकि यहाँ के शांति नगर, राजू नगर, बिड़ी कॉलोनी, गौसा नगर जितने भी यहाँ पर स्लम एरिया हैं, इंशाल्लाह नौजवानों ने यहाँ पर सुलेशन, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, छोटे छोटे से बच्चे 15 साल 16 साल के बच्चे सुलेशन मारना, गांजे को मारना, बाकायदा जुए खेलना, यहाँ पर पूरा अड्डा यहाँ पर बनाया जाता है। हमने उसीलिए यहाँ पर साल में एक मरतबा इसीलिए किया जाता है ताकि स्टेडियम की पूरी क्लीनिंग हो जाए, यहाँ की पाकी सफाई हो जाए, ताकि ये सुलेशन मारने वाले, गांजे मारने वाले इन नौजवान के अंदर एक जज्बा आ जाए। ये जज्बा आने की वजह से हम स्टेडियम के अंदर इसीलिए यहाँ पर कराया जाता है। कम से कम 5000 के ऊपर यहाँ पर भीड़ जमती है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर दल्लो मुज्जो साहब रेलवे के बहुत बड़े गुजरी के बिजनेसदार हैं, साल में 2 करोड़ रुपया कमाया जाता है। नसीरुद्दीन बाबू हैं, ये असलमदा गुजरी वाले हाइनसदा के बेटे हैं, ये हमारे इल्लू साहब हैं, ये सब कमेटी के ज़िम्मेदार हैं। साकिब हैं, नूरुल्लाह साहब हैं, अयूब साहब हैं, गुजरी के आबिद हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुदस्सिर लाहिर हैं। हमने ये कमेटी में इसलिए जमे हैं ताकि ये एक अच्छा काम करते हैं, नौजवाना के अंदर जज्बा ना आए। हमने ये नहीं कि इतने कमेटी के ज़िम्मेदार जमकर किसी को बुरा लगे, किसी को गलत लगे, ऐसा अगर से काम होता तो हम सब कमेटी के अंदर इतने ज़िम्मेदार जम सकते थे क्या? ये कोई के शरारत कर रहे हैं बस इस कमेटी को फोड़ने के लिए। इंशाल्लाह ये ऐसी कभी भी कमेटी फूटेगी नहीं। अच्छा काम करने के लिए बाकायदा हम पूरे के पूरे वगट होकर हमने काम करा रहे हैं, ताकि इसलिए काम करा रहे हैं कि शांति नगर, गौसिया नगर, ऐसे बड़ी कॉलोनी, ऐसे नौजवानों के अंदर एक जोश, एक जज्बा आ जाए। जज्बा अगर यहाँ पर देखिए 5-6 हज़ार की भीड़ जमती है। अगर स्टेडियम में चाहते तो बाकायदा 1 लाख रुपया खर्च कर भी स्टेडियम ले लेते, लेकिन वहाँ पर 100 या 200 आदमी के ऊपर नहीं जमते। ये नुकसान किसका होता? तो हमारी कौम का होता। ये कौम का, पैसे का नहीं है। पैसा बाकायदा हमने देकर हमें वहाँ पर करा दिए भी जाते, लेकिन कौम का नुकसान होता। इसीलिए कम से कम 5000 आदमी के अंदर कम से कम 200-300 नौजवान, ताकि उन्होंने देखकर ये जोश और ये जज्बात देखकर इंशाअल्लाह वो पहलवानी के अंदर आते हैं, वो क्रिकेट के अंदर आते हैं, वो जिम के अंदर आते हैं, बॉडी बनाने के लिए आते हैं। कई किस्म के जितने भी मिलाद स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स चलते हैं उनके अंदर जोश और एक जुनून चढ़ता है। हमने उसीलिए करा रहे हैं। बस एरिया के अंदर अच्छा काम कर रहा है। मैं हर एक जो भी ये काम से जो भी गैर गलत जो न्यूज़ों के अंदर जो बता रहे हैं ये सब सरासर गलत है। इंशाअल्लाह हमने बहुत सारे ज़िम्मेदार बाकायदा हमने मशवरा भी किया। बाकायदा आप लोगों को जो तकलीफ़ होती है तो बाकायदा हमने स्क्रीन वहाँ पर डाल दिया जाता है।
आप लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं होना। पिंडाल इस तरफ पड़ता था, इंशाल्लाह पिंडाल अब उस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह वहाँ से पूरा हमने कमेटी वाले बैठकर बात की है, बाकायदा वहाँ पर जो भी लोगों को जो तकलीफ होती है तो बाकायदा हमने वहाँ पर स्क्रीन डाला जाता है। अपने अपने घरों के अंदर जिससे तकलीफ होती है इंशाल्लाह एक दिन कुश्ती चलती है, बस अपने अपने घरों की आप हिफाजत कर लें। आप इस काम अच्छे काम के लिए आप बढ़ चढ़ कर साथ देना है इन नौजवानों का। लेकिन देखिए कमेटी के अंदर कैसे आदमी है, कैसे उनका वक्त ख़राब कर कर साल में एक मरतबा 2-3 करोड़ रुपए कमाने वाले एक महीना इन्होंने छोड़ दिया जाता है। कम से कम एक महीने का इनका नुकसान 25 से 30 लाख रुपए इनका नुकसान है। किस लिए कुर्बानी दे रहे हैं? बस कौम के बच्चे यहाँ पर अच्छे होना है, कौम के बच्चों को जोश आना है, कौम के बच्चों को जज्बा आना है। ये पैसे के लिए नहीं देख रहे हैं। कम से कम 5-10 लाख रुपया खर्च करते हैं मुझे साहब, पूरी कमेटी वाले 1 लाख 2 लाख रुपया खर्च कर दिया जाता है। मतलब यहाँ लोगों का ये शिकायत थी कि पुलिस वगैरह को भी वो शिकायत किए ही। देखिए पुलिस किसी को भी शिकायत की, हमने कानून से आ रहे हैं जी, हमने एमएलए से परमिशन लिया गया है, पुलिस कमिश्नर से परमिशन लिया गया है, पुलिस स्टेशन से परमिशन लिया गया है। हम एरिया के कॉर्पोरेटर हैं, एरिया बाकायदा क्लीन करा रहे हैं। अगर गलत होता तो हमने बाकायदा हमने दूर किया जाता। यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं क्या? ये कुश्ती कराना गलत काम है क्या? लेकिन आपने एक बात बड़ी अच्छी कही है, स्क्रीन वगैरह का जो इंतजाम का आपका ख्याल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं समझता हूँ कि स्क्रीन आ जाने से यहाँ के लोगों की शायद मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह पूरी कोशिश, इंशाल्लाह हमने स्क्रीन को बोला है, इंशाल्लाह स्क्रीन डालते हैं। इंशाल्लाह यहाँ पर किसी को तकलीफ नहीं आना है। बस यहाँ के नौजवान जितने भी यहाँ पर जो भी कुश्ती करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह जुम्मा और हफ्ता 2 दिन यहाँ पर कुश्ती चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद यहाँ पर जमकर इंशाल्लाह इन स्पोर्ट का हमारा सब साथ दें। इंशाल्लाह इस जो फंक्शन है इसको कामयाबी करने के लिए इंशाल्लाह दुआ एक आखिरी सवाल है, आप एज ए कारपोरेटर यहाँ पे लोग आप बोल रहे हैं यहाँ 5000 लोग जम सकते हैं, यानी एक बहुत बड़ा मैदान है, आप एज ए कारपोरेटर इसे तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं? इंशाल्लाह मैंने एमएलए साहब को बहुत बार मैंने बजट के लिए लिखा है। इंशाल्लाह 2-3 करोड़ रुपए बाकायदा इंशाल्लाह एमएलए साहब मुझे वादा भी करे हैं। इंशाल्लाह स्टेडियम की तरक्की के लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द पैसा दूंगा। इंशाल्लाह हमारी सरकार नहीं है, उसी लिए पैसा आने से थोड़ा दिक्कत हो रही है। इंशाल्लाह 5-6 महीने में एमएलए में इलेक्शन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मरतबा जो भी हमारी सरकार आ जाएगी तो इंशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपया लेकर इंशाल्लाह इस दीवालों को इंशाल्लाह 25-25 अड़ी 30-30 अड़ी हाइट कर दिया जाएगा, ताकि आसपास घरों वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्टेडियम इंशाल्लाह तरक्की में आ जाएगा। जी हमीद भाई, हमीद जी, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप मिला स्पोर्ट्स काउंसिल के कैशियर हैं जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना इतना चाहता हूँ कि हर साल हमें एक बार आकर, एक रोज़ आकर हमें ये स्टेडियम में स्पोर्ट्स कराना हो तो पहले हम क्लीनिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखेंगे तो आप नज़र घुमाएंगे तो गांजेड़ू सब कुछ मिलेगा आपको, मगर स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स जितना भी अच्छा यहाँ क्लीन करके जाते हैं। हम पूरे स्कूलों वाले आकर यहाँ स्पोर्ट्स करवा के जाते हैं। हम इतना अच्छा क्लियर करके दे के जाते हैं। जब स्पोर्ट्स हुआ के बाद भी हम काम करके जाके पाक करके देके जाते हैं। ये चंद आदमियों को ये हाजिम नहीं हो रहा है कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पहलवानों जब पहलवान बनेगा तो खांचे पे ही आएगा, लंगोट बन के ही आएगा। पहलवान बनना है, पहलवान लड़ना है तो लंगोट बन के आके स्टेडियम में लड़ना है अखाड़े पर। वो नहीं लड़ेगा तो पॉइंट की कुश्तियाँ भी हम कराते हैं, जैसे कि लड़कियों की भी कुश्तियाँ कराते हैं हम लोग। अभी इस साल भी चल रहे हैं, लड़कियों भी आते हैं, लड़कियाँ भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत से अच्छा चल लेके जा रहा है इंशाल्लाह। आप लोग बात बहुत अच्छी रही कि आप लोग ये फैसला करें कि स्क्रीन डालेंगे जी। तो लोगों को मतलब जो शिकायत करते थे उनकी शिकायत ही नहीं रही ना। जी जी, बेशक बेशक इनके एमएलए हैं, इनके इंशाल्लाह हम लोग उस शिकायत का मौका नहीं देंगे, बहुत से अच्छा तरीके से काम करके जाएंगे। ये जो हमारा ये ग्राउंड है हमारे एरिया के अंदर, आपको मालूम रहेगा हमारे एरिया नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैसूर के अंदर, पहली बात तो हमारे पास स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे पास अच्छे गुड प्लेग्राउंड्स नहीं, स्टेडियम्स नहीं, ऐसा अब जो है अवेलेबल हमारे पास है, हमें उस मैच करना। हमें इससे पहले कई साल बारीघाट स्कूल के अंदर करवाते थे, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे एमएलए साहब जो है माशाल्लाह उस स्कूल को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर रहे हैं। अब वहाँ पर वो ग्राउंड जो था वो बिल्कुल छोटा हो गया है और वहाँ पर करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो उसके बाद हमें अगर कर सकती हैं तो हमें इसे क्या तुम्हारा चामुंडी विहार स्टेडियम को जाना, चामुंडी विहार स्टेडियम के अंदर वो अलग ही वहाँ का अलग ही निज़ाम है। वहाँ का निज़ाम अब हमारा क्या है, सिर्फ यहाँ पर हमें मुस्लिम कम्युनिटी को
ज़्यादातर यहाँ पर अगर गैर भी आ रहे हैं तो नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स भी आ रहे हैं तो उनको भी वेलकम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है हमारे यहाँ पर जो है मुसलमान नौजवान इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, हमें हमारे पास जो अवेलेबल जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के अंदर हमें करवाना। अब ये स्टेडियम है, हमारे अलावा ऐसा बड़ा देखो पूरे कर्नाटक के अंदर, एंटायर कर्नाटक के अंदर ऐसा स्पोर्ट्स मुझे एक बताओ आप, एक ऐसा जहाँ पर पूरे इंटर स्टेट से हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तुम्हारा और भी दीगर स्टेटों से जो है हमारे स्पोर्ट्स में नौजवान स्पोर्ट्समैन आको हिस्सा लेती हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इसका एक रिकग्निशन है। तो हमारा एक ही रिक्वेस्ट, हमें किसी को भी हमें ये करना नहीं चाहते, यहाँ की इनकी क्या रिक्वेस्ट रही किसकी रेस्टोरेंट्स की, उसे लेकर जो है हमें इंशाल्लाह यहाँ पर हमें स्क्रीन का भी इंतज़ाम कर रहे हैं और साथ साथ में वो जो पोस्टर्स की बात करें, पोस्टर्स भी इंशाल्लाह क्या है हमें हाफ जो है हाफ जो है हमें उसका वो क्या करना है करना वो बाकायदा हमें ख्याल रखो, हमें करते इंशाल्लाह।